Good morning, students. I welcome you all. On behalf of Faculty of Computer Applications and IT, I extend a very warm welcome to everyone present over here. Smartphones today are being used everywhere. Each and every person today is using smartphones. The increasing use of smartphones has given a breakthrough to the mobile application development technology. Let us learn one such mobile application development technology, that is iOS. So to learn this exciting new technology, today we have with us Professor Vishal Narwani, who is having 6 years of industry and academic experience. He is an expert in subjects like blockchain, Python, and app development. He is the backbone behind the applications which are currently hosted on our Apple and Android store. You can have a look at the applications which have been developed by the students of the department along with in coordination under the guidance of Professor Vishal Narwani. I request Professor Vishal Narwani to start with the session. Good morning, everyone. I hope I am audible, everyone. Yes, so I welcome you all. Thanks, Jenny Madam, for the wonderful introduction. Today we have gathered here to attend the session on mobile application development using iOS, right? Let me share my screen. Yes, so we'll be looking at the development using iOS, how you can develop the app using iOS with Xcode and Swift. Yes, so Xcode is the official tool which is introduced by Apple to develop the app in for iPhone, right, for iOS. Before moving ahead, I would like to raise a question to all of you. Just forget iOS for a minute. Just focus on what do you mean by mobile application development. You can see one beautiful 3D figure here, right? Isn't it? But just let me know, what do you mean by mobile application development? Just anyone would like to input anything? What do you mean by mobile application development? You can type in chat, or you can unmute your audio and can speak. Yes, anyone? In simple words, not necessary in fancy words. Yes, I have some response. Creating software applications. Yes, 50% correct, I will say. Creating software application for yes. Anyone would like to attempt? Creating software applications for customers, users. Yes, but for which devices? For mobile devices, right? So mobile application development deals with the not only deals with phone, but it also deals with the you can say watch, or yes, Honey, good. Creating software applications for users and mobile devices. So yes, correct. But if someone asks me, sir, what are your point of view? What do you think is mobile application development? अगर मुझे कोई पूछे तो straight away I would have answered that wait a minute, I'm starting my presentation again. Yeah, so I was saying that अगर मुझे किसी ने पूछा होता कि सर आपका क्या कहना है, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की डेफिनेशन बतानी है तो व्हाट विल यू से फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट? अगर इफ इन वन वर्ड, if I need to introduce mobile application development, I will put it as
this. Yes, this is what I feel for mobile application development. Yes, Aladdin is me, I guess, and the users, you and me, everyone is Aladdin, and yes, Genie is your mobile, and I'm coming shortly to mobile applications. But why this is so? Anyone would like to attempt why I have portrayed this figure for mobile applications or mobile application development? Yes, is it so? Let me give you a few examples. Those who are living with their grandparents, and those grandparents who are not much into technology, है ना, ऐसा होता होगा, है ना, it is possible, है ना, ऐसा होता होगा कि मानिए कि आपके दादी ने या दादा ने बोला, है ना, कि बेटा आज बहुत बारिश गिर रही है, बारिश का माहौल है, क्यों ना कुछ अच्छी चीज खाएं, और है ना, कि लेट्स से पकोड़े या फिर दाल वड़े या कुछ एनीथिंग, है ना. तो नाउ व्हाट यू विल डू, है ना, लेट्स से यू डोंट नो हाउ टू कुक, isn't it? So what you will do, you will just bring your, है ना, मैजिक लैम्प, है ना, मैजिक लैम्प आप लेके आएंगे और क्या करेंगे, मैजिक लैम्प में आप 2 क्लिक करेंगे सिर्फ, है ना, यू विल टैप ट्वाइस एंड दी गर्मा गर्म भजिया और पकोड़ा विल बी एट योर डोर स्टेप, isn't it? है ना, दिस इज व्हाट आई मीन अबाउट मीन फॉर दिस दी जादुई चिराग, है ना, विच मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेरे को लगता है कि यस, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, है ना. ऐसा भी सिनेरियो ले सकते हैं, है ना, वन अनदर सिनेरियो, लेट्स से यू आर स्टडिंग, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, उतनी देर में आपके मदर या फादर ने बोला कि मेरे को थोड़ा काम है, तो मान लिया आप मणिनगर में रहते हैं, है ना, उन्होंने बोला कि मेरे को नरोड़ा जाना है, अभी के अभी चलना, लेके जाना, यू विल से नहीं, आई एम हैविंग माय एग्जाम्स एंड आई नीड टू स्टडी. तो क्या करेंगे, वापस फंस गए, वापस क्या करेंगे आप, है ना, ये जादुई चिराग से जीनी निकालेंगे और सीधे क्या करेंगे, अगेन यू विल क्लिक ट्वाइस एंड द ड्राइवर विथ इट्स कार विल बी एट डोर स्टेप, है ना, कि जिससे आपके फादर या मदर ट्रैवल करके ओला उबर में बैठ के कहाँ पहुंच जाएंगे, जहां उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है पहुंच जाएंगे, isn't it? है ना, दिस इज द एरा वी आर लिविंग इन, है ना. एवरीथिंग यू विल यू हैव इन योर मोबाइल डिवाइस, है ना, जितना आप उसको यूज करना चाहें, है ना. लेट्स टेक एन अनदर सिनेरियो. मानिए सम ऑफ यू मस्ट बी प्लानिंग टू विजिट अब्रॉड फॉर फ्यूचर स्टडीज, isn't it? है ना. तो ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू मिस योर फ्रेंड्स, योर सोशल लाइफ हियर, है ना. किसी का बर्थडे आया, किसी का एनिवर्सरी, है ना, किसी का मैरिज, वेडिंग फंक्शन, है ना, ये सारे मिस करेंगे. वहां बैठे बैठे यहाँ आपको टच में रहना है, अगेन यू विल रिकॉल योर जीनी, है ना, कि जीनी अब मैं क्या करूं, है ना, यू विल, है ना, रब योर अगेन योर मैजिक लैम्प एंड जीनी विल कम अप विद दिस सॉल्यूशन. Don't worry, you have your Facebook, WhatsApp, through which you can still be socially connected with your friends and family. There are miles away, and last अभी मेरे को हुआ कि वेबिनार करना है ना, iOS पे वेबिनार किया जाए, बट आई थॉट हाउ विल आई डू इट, है ना. मैंने ये मैजिक लैम्प से पूछा एंड ही सजेस्टेड मी यूज you have so many video conferencing tools, है ना, why to worry, है ना, and I opted for Google Meet. एंड ये मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से, मोबाइल डिवाइसेस की वजह से ही शायद ये वेबिनार अभी अटेंड कर पा रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट, हाउ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हैज चेंज द सिनारियोज इन लास्ट 10 years, है ना. गेटिंग इट. ये जो आपको मैजिक लैम्प दिख रहा है ना, आई विल से दिस मैजिक लैम्प इज योर मोबाइल डिवाइस, है ना, ये मोबाइल डिवाइस है ना. और इन दिस मैजिक लैम्प, इन दिस मोबाइल डिवाइस, यू कैन हैव मल्टीपल वेरियस एप्लीकेशंस, है ना, विच विल मेक योर लाइफ इजी, स्मूथ, है ना, isn't it? है ना. तो ये हम सिनेरियो देख रहे हैं, ऐसे आप मिलियंस ऑफ एग्जांपल ले सकते हैं, है ना. मैंने यहाँ पे सिर्फ 3-4 सिनेरियो लेके
तीन चार सिर्फ ऐप को पोर्ट्रे करने का ट्राई किया है ना. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डेवलप आवर ओन मैजिक लैम्प, है ना. मैजिक लैम्प में एक और हम कुछ फंक्शनैलिटी आज ऐड करने का ट्राई करने वाले हैं, है ना, यूजिंग iOS एंड Xcode. ठीक है. सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू the first and foremost requirement which you should have is for iOS you will need to have Mac device, है ना. You will need to have Apple machine so that you can start developing your iOS apps, है ना. उसके बगैर it is not possible, है ना. आप दूसरे एप्लीकेशंस की दूसरे शायद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें, लेट्स से एंड्रॉयड या रिएक्ट नेटिव या फ्लटर, those applications can be developed in Windows or Ubuntu, but to develop iOS apps you will need to have this thing that is Mac machine, है ना. Mac machine के बगैर ये possible नहीं होगा, है ना. And in Mac machine you need to have tool known as Xcode, है ना. Which is the tool? It is Xcode, है ना. कहीं भी देखिए इशू है, क्वेश्चन है, you can directly raise and, है ना, raise a question. I'll try to answer it. You can ask in chat or you can unmute your audio and can ask, है ना. Yeah, it will start in a minute. Yes, this is the welcome screen, है ना. Xcode का ये welcome screen है ना. So here you can see multiple options. These are my recent projects which I have created, and in this side you are able to see get started with playground, create new Xcode project, है ना. So Xcode is a tool which we'll be using for developing apps for iOS, specific iOS. Before 2012-13 Apple had only one language for development, that was Objective-C, है ना. As all of you are IT students, you must be knowing that there are multiple programming languages. So iOS apps were developed in Objective-C only. But Tim Cook, the CEO, after Steve Jobs, had a vision that we will be launching super fast iPhones in 10 years. So to support this super fast devices, they come up with one language that is known as Swift. Swift itself means that fast, super fast. So now you can develop the iOS apps using two languages. One is Objective-C and another is Swift. Swift is the latest thing which is currently trending in market. Apple is coming with new versions every year. So what we'll be doing, we'll be using Swift for iOS application development. Okay, so in first screen you will need to create a new Xcode project, right? So I have clicked on create new Xcode project. Yes, yeah, yes. Here you can see multiple options. If you want to develop for iOS or watchOS, you can develop the application for Apple Watch. Or you want to develop application for TV. Yes, we have Mac TVs, which is known as tvOS, right? So we are targeting for mobile device, specific simple iPhone. Okay, so I'm going into iOS, and in application there are again multiple options like master detail application, page based. Forget all this complexity right now. I'll just focus on single view application. Here you can see you can develop iOS game as well using Xcode. Okay, so here is single view application. I'm clicking on that. Okay, so now it is asking me for various details of the application which we are developing shortly. Okay, so product name. So let's say product name is webinar at MSc IT, and this is let's say our application name. Okay, now here is one important field known as organization identifier. And I have one question. I would like all of you to answer the question. It is possible that WhatsApp नाम का एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे है, राइट, प्ले स्टोर पे है. इज इट पॉसिबल कि आप खुद का ऐप बनाएं और उसका नेम WhatsApp रखें?
इज इट पॉसिबल? स्नैपचैट है, आप स्नैपचैट नाम का एप्लीकेशन खुद बना के रख सकते हैं स्टोर पे? Yes, I have few. Jaimin says no. Deepam says no. First, I am talking about Android. Let's say, चलिए. Android में is it possible? Okay, package name has to be unique. Good, Sufyan. Anyone else? Let's say first I am talking about Android. Is it possible in Android to have the same package name? Sorry, same app name for multiple applications? Yes, in Android. Yes, Krishna. In Android, it is possible that Snapchat है, WhatsApp है, अगर आपको खुद कोई सेम नेम का एप्लीकेशन रखना है, you will be able to do it. But in iOS, in Apple Store, है ना, Apple has a strict rule that अगर एक बार WhatsApp, Snapchat, Instagram ऐसा कोई एप्लीकेशन किसी भी नेम का, है ना, लेट्स से Zomato, Swiggy, Ola, Uber, जो भी आप एप्लीकेशन का नेम ले लीजिए, एक बार वो आया, you cannot repeat that name for your app, है ना. So your app name should be unique, है ना. जो ऐप नेम मार्केट में अवेलेबल नहीं है वैसा ही आपको ऐप नेम लेना है ना. सो दिस इज आवर ऐप नेम, जो हमने लिखा ना प्रोडक्ट नेम, दिस इज आवर ऐप नेम, एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर as one of you have rightly said, there should be some differences. No, yes, in iOS definitely there should be some differences, then and then it will allow, otherwise it will not allow. Now here it is organization identifier, it is asking for organization identifier, right? And in nutshell I can say that it is a primary key, and it is a primary key. What is primary key? Unique identifier for application on store, है ना. Simple, है ना. आपको this should be unique in Android and in iOS, in both this should be unique, है ना. ये जो आपका है ना, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है बंडल आइडेंटिफायर इज com.gls.webinar@mscit, दिस इज योर आइडेंटिफायर, है ना. सो ऐसे सेम नेम का दूसरा आइडेंटिफायर अगर स्टोर पे होगा तो एप्पल विल रिजेक्ट योर ऐप, है ना. इट विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर ऐप दो यू हैव डेवलप्ड द कंप्लीट ऐप, है ना. वो आप स्टोर पे पब्लिश नहीं कर पाएंगे. सो बिफोर डेवलपिंग ऐप यू शुड फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट, है ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी, है ना. लेट्स से आई वांट टू डेवलप द ऐप यूजिंग स्विफ्ट. ओके, तो स्विफ्ट ले लिया हमने. Now it will ask for device, and for which device you want to develop app, for iPhone, for iPad, or you want to develop universal app. Universal app means the app which will be supported in both the platforms, in iPhone as well as in iPad. For starting, we are developing our first app, so my focus is only iPhone. Here you can see multiple options, right? These are a bit advanced, but to give a quick glimpse, this is the use core data. Now I have a question for all of you. Instagram, everyone will be using it, right? Instagram सारे करते हैं ना यूज, है ना. एक एक्सरसाइज शायद पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं, है ना. इंस्टाग्राम ओपन करना है ना. आपकी किसी भी फ्रेंड के प्रोफाइल में जाइए, उसके रिसेंट पोस्ट, इमेजेस, वीडियोस विजिट करिए, ठीक है. नाउ स्विच ऑफ योर मोबाइल डेटा और वाईफाई, ठीक है. इंस्टाग्राम में ही है आप, नोटिफिकेशन बार आपने ओपन किया, यू हैव स्विच ऑफ योर मोबाइल डेटा और वाईफाई, ठीक है. नाउ यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट. नाउ अगेन गो टू फ्रेंड्स प्रोफाइल. विल यू बी एबल टू सी हिज और हर पोस्ट? एनीवन? अगर बंद करके जाते हैं, नेट बंद करके, विल यू बी एबल टू सी? Yes, Anil is saying yes, Jaimin is saying no. Okay, anyone? किसी ने ट्राई किया हो? हाँ, some of you are saying yes and some of you are saying no. Okay, so answer is you will be able to see the posts, है ना. हाँ, कैश, yes. हाँ, है ना. हाँ, as Raj is saying कि some extent तक वो आएगा, है ना. एक आध दो पोस्ट दिखेंगे. वो एक आध दो पोस्ट कहाँ से आ रही है? इंटरनेट तो बंद है ना. सो व्हाट दिस एप्स do is they store the data locally in the device itself, है ना. Irrespective of, yes, it is known as, I'll not call it as cache memory, but what application does is it has SQL database,
है ना, हर एक ऐप का खुद का एक डेटाबेस होता है ना, वो डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है, डू यू नीड दैट इन योर ऐप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कोर डेटा पे टिक करेंगे, अदरवाइज यू विल अनचेक इट, है ना। यू नीड दोज फंक्शनैलिटीज, आपको चाहिए कि आपके एप्लीकेशन में भी टेबल, रोज, कॉलम, मल्टीपल टेबल्स आपको क्रिएट करने हैं, है ना, कुछ लोकल डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, है ना, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, एल्स इसको अनमार्क करके आगे जाएंगे, ठीक है। अभी we are not using it, and these two options are for testers, these are not for developers. You must be aware about quality analysis, है ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और दूसरा होता है ऑटोमेशन, ठीक है ना। ऑटोमेशन अगर आपको iOS एप्स के लिए करना है, सीखना है, then these two options are important for you. If you are developer, if you are developing, है ना, no need to take these options. Okay, I am pressing next, है ना, it is asking me for location. Okay, no issues, I'll save it, है ना। This is the first screen, है ना, which you are seeing, है ना, this is the setting screen, है ना। Forget this for a minute, I'll come back to this in a while. Let me click on main.storyboard. Yes, है ना, you can see some white screen here, है ना, isn't it? So for Xcode, I have used multiple IDs starting from Sublime, Eclipse, NetBeans, Android Studio, apart from that PyCharm, and various IDs I have used. But this is the most beautiful IDE I have seen in my life, है ना, Xcode, है ना। इतना आपके लिए, डेवलपर के लिए इजी कर देगा, जो भी आप आने वाली नेक्स्ट 15-20 मिनट में देखेंगे, है ना। डेवलपिंग एप्स इन iOS इज वेरी मच ईजी, है ना। कैसे इजी अभी आपको पता चलेगा। विल बी क्रिएटिंग मल्टीपल स्क्रीन्स, विल बी गिविंग नेविगेशंस, विल बी एडिंग कंट्रोल्स टू आवर ऐप, है ना, बहुत इजी। ज्यादातर काम अगर आप इसमें देखेंगे तो यू विल नीड टू, यस, यू विल डेफिनेटली नीड टू राइट कोड फॉर दिस, बट बहुत मिनिमम कोड लिखेंगे हम, है ना। शायद आज अभी जो हमारा वेबिनार है ना, उसमें विल नॉट गोइंग टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, है ना, एक भी लाइन का कोड नहीं लिखेंगे, बट तो भी आप देखेंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे खुद से क्रिएट हो रहा है ना। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग गिवन बाय Xcode, है ना। हाँ, सो लेट्स से बिफोर स्टार्टिंग, है ना, iPhone was first iPhone when it was launched. First iPhone was launched when? Yes, any one of you? Which was the first iPhone and when it was launched? (2009, 2001? नहीं, थोड़े आगे पीछे हैं दोनों, अनिल, मोहित। Yes, 2006, correct, है ना। It was launched around 2005, 2006. Which was the first device? क्या नाम था? जैसे अभी X आपको दिख रहा है ना, iPhone 11 Pro, है ना। क्या फर्स्ट कौन सा था? iPhone 3, yes, perfect. First generation iPhone, it was known as, yes, Mohit, good, है ना। As Manit is saying, yes, it was iPhone 3, है ना। जो फर्स्ट iPhone लॉन्च हुआ था, that was iPhone 3, है ना। Then they come up with iPhone 3G, then 3GS, then they come up with iPhone 4, 4S, 5, 5S, है ना। 5S तक एप्पल का सिनारियो, है ना, और 5S के बाद, हाँ, 5S के बाद एप्पल का सिनारियो आपको आसमान जमीन का फर्क लगेगा, है ना। व्हाई इज इट सो, है ना, बिकॉज फाउंडर ऑफ द आईफोन, है ना, द ग्रेट स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स का बिलीव ये था, उनका बिलीफ ये था कि आपका जो मोबाइल डिवाइस होगा, वो मोबाइल डिवाइस शुड फिट इन योर पाम, है ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका जो पाम दिख रहा है, आपका मोबाइल डिवाइस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। दिस वाज हिज थिंकिंग, है ना। सो जितने भी आईफोन्स आप देखेंगे ना, जब तक स्टीव जॉब्स थे, है ना, सारे आईफोन आपको मिलेंगे ये पाम की साइज के, है ना, इससे ज्यादा बड़े होंगे नहीं। आप देखिए 5S भी, 5S अगर मैं बोलूं तो अभी जो SE मार्केट में नया लॉन्च हुआ है ना, आईफोन SE, है ना, बिल्कुल वो सेम साइज का है। आईफोन 5 इतना पाम में फिट हो जाता है, बिकॉज ही यूज्ड टू थिंक दैट कि मोबाइल डिवाइस शुड बी ऑपरेटेड विथ वन हैंड ओनली, इसको दो हाथ से ऐसे करके ऑपरेट करना नहीं होता है ना। ये उसका बेसिक यूआई फंडामेंटल था, है ना। सो ही फॉलोड,
बट है ना वो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, है ना. देन टिम कुक, है ना, took his place. He was seeing the tremendous competition, है ना, in terms of mobile OS, mobile operating system, mobile devices. So उन्होंने सोचा कि let's change this fundamental, and he come up with iPhone 6, 6s, 6s Plus, 7, 8, है ना. अब तक आप 11 Pro, है ना, देख रहे हैं लेटेस्ट डिवाइसेस जो अब शायद इतने बड़े हैं, है ना, 5, 5.5 इंच, 6 इंच तक आपको आईफोन के डिवाइसेस मिलते हैं. सो ये मैंने अभी शेयर किया. द पॉइंट ऑफ व्यू इज, जो स्टार्टिंग में आईफोन एप्स डेवलप होती थी, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिव टर्म शायद आप लोगों को पता होगा, है ना, राइट, है ना. एनीवन हु डजंट नो व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस, है ना. आई गेस ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट, है ना. रिस्पॉन्सिव मतलब हर एक डिवाइस साइज में आपका ऐप सपोर्ट होना चाहिए. बट दोज वर द डेज जब डिवाइस की साइज ही फिक्स है, तो डेवलपर को रिस्पॉन्सिव क्यों बनाना, है ना. देयर वाजंट एनी नीड. सो व्हाट दे वर यूज्ड टू डू, वो स्टैटिक कोडिंग करते थे, है ना, कि स्टैटिक बटन्स रख दिए, वहीं पे बटन रहेगा, बटन हिलना डुलना ही नहीं है. X5 पोजीशन पे फिक्स कर दिया, जैसे लेट्स से 10-10, है ना, तो 10-10 पे ही वो आपका बटन रहेगा, कहीं भी जाएगा नहीं, है ना. तो पहले वो सिनेरियोज हुआ करते थे. अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सूनर एप्पल ने एक फीचर लॉन्च किया नोन एज ऑटो लेआउट, जिससे आप रिस्पॉन्सिव एप्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना. जो एप्स आपकी 4 से लेके टीवी तक, है ना, चाहे डिवाइस कितना भी छोटा या बड़ा हो, है ना, वो आपको सपोर्ट करेगा. ठीक है. बट एज वी आर लर्निंग आवर फर्स्ट ऐप हियर, आई विल बी गोइंग इनटू स्टैटिक मोड, है ना. आप डायनामिक कर सकते हैं इसको लेटर ऑन, बट है ना, अभी डिजाइनिंग का पार्ट उतना हम फोकस नहीं दे रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस पे. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, देखिए अब आप स्क्रीन पे अगर देखें, है ना, there is one property known as auto layout. I am disabling it for right now, है ना, उसको हम डिसेबल कर देते हैं. इससे क्या होता है, आपकी जो ऐप होगी वो स्टैटिक होगी, सारे डिवाइस में सपोर्ट नहीं करेगी. अगर आपको सारे डिवाइस में सपोर्ट कर रहे हैं तो यू विल नीड टू यूज ऑटो लेआउट, है ना. अब ऑटो लेआउट स्टार्टिंग में सीखना आई विल नॉट सजेस्ट, है ना. स्टार्टिंग में जब आप ऐप डेवलप कर रहे हैं यूजिंग iOS, डिसेबल इट, है ना. बेसिक आप स्टार्ट करिए, ठीक है. हाँ, यहाँ पे अब आपको दिख रहा है सिंपल एक बेसिक एक फोन दिख रहा है ना. हाँ, अब ये जो फाइल अभी ओपन है, इट इज नोन एज स्टोरी बोर्ड, है ना. विच, हाँ, स्टोरी बोर्ड अगेन मैंने जैसे बोला, एक्सकोड इज अ ब्यूटीफुल आईडी. हर एक जगह पे जहां आप एक्सकोड पे नेम देखेंगे ना, है ना, बहुत ही मीनिंगफुल नेम हर जगह पे उन्होंने दे के रखा हुआ है ना. दिस इज स्टोरी बोर्ड विच टेल्स द स्टोरी ऑफ योर होल एप्लीकेशन, है ना. इस वे में उन्होंने ये स्टोरी बोर्ड टर्म लिया हुआ है ना. वेट, लेट मी शो यू वन ऐप, है ना, which I developed few years back. आपको स्टोरी बोर्ड क्या होता है वो आइडिया आएगा, है ना. व्हाट स्टोरी बोर्ड इज ऑल अबाउट, है ना. वेट अ मिनट, इट्स लोडिंग. हाँ, ये स्टोरी बोर्ड फाइल है जिसमें आप सारा अपना यूआई डिजाइन करते हैं, सिर्फ एक ही फाइल, है ना. कोडिंग के लिए मल्टीपल फाइल्स हैं, बट अगर आपको आईफोन ऐप का डिजाइनिंग करना है तो उसके लिए एक ही फाइल है. एक ही फाइल में आप मल्टीपल, अगर मैं HTML की लैंग्वेज में बोलूँ तो मल्टीपल पेजेस आप क्रिएट कर पाएंगे, है ना. यू विल एबल टू डिजाइन इट, है ना. जो भी आपको उसमें इमेजेस ऐड करनी है ना, जो भी फीचर्स देने हैं यूआई रिलेटेड, आप सिर्फ और सिर्फ मेन डॉट स्टोरी बोर्ड, दैट इज द ओनली फाइल विच विल बी यूजिंग, है ना. इट्स लोडिंग, है ना. इट इज अ ह्यूज ऐप, है ना. वो अभी स्टोर पे भी है ये ऐप, है ना. जो ऐप अभी मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द ऐप फॉर पेट्स. हमारे लिए इंस्टाग्राम है, बट इफ पेट्स नीड टू कनेक्ट सोशली विथ अदर पेट्स, देन क्या करेंगे वो, है ना. उनको भी चाहिए सोशलिंग, है ना. तो उनके लिए भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ फ्यू इयर्स बैक, है ना. हाँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना. दिस इज द स्टोरी बोर्ड, है ना. देखिए आपको पूरे एप्लीकेशन में जितनी भी स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन सारे एक साथ दिखेंगे. अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, है ना, तो इसमें देखो आपको लाइंस दिख रही हैं. लेट मी जूम इन, एंड इट्स लोडिंग बिकॉज बहुत सारी इमेजेस इसमें, बहुत सारे आप स्क्रीन दिख रहे हैं. वेट अ मिनट, इट विल फिनिश लोडिंग, है ना. सो ये आपको दिख रहा है. जब मैं बोल रहा हूँ स्टोरी बोर्ड, तो स्टोरी बोर्ड मीन्स व्हाट,
विच टेल्स द स्टोरी ऑफ योर कंप्लीट ऐप, है ना। देखिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा है, देखिए आप देखें अगर तो मल्टीपल स्क्रीन के बीच में आपको कनेक्शंस दिख रहे हैं, है ना। ये कनेक्शंस आपको ये बताते हैं कि फ्रॉम विच स्क्रीन यू कैन नेविगेट टू विच स्क्रीन, है ना। पूरी आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन का नेविगेशन आपको ये स्क्रीन में सिंपली मिल जाता है ना, इजंट इट। लेट मी शो यू 1-2 screen in details. Wait a minute, it's still loading. है ना, आप मल्टीपल स्क्रीन देख रहे हैं, देखिए हाँ यस दिस इज द स्क्रीन आई वाज लुकिंग फॉर, है ना। ये देखिए इसका होम स्क्रीन है ना। देखिए आपको लॉगिन साइन अप ऐसा दिख रहा होगा, है ना। छोटा है, लेट मी जूम इन अ बिट, वेट अ मिनट, है ना। तो ये देखिए दिखा रहा है कि लॉगिन स्क्रीन है, तो लॉगिन से देखिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे भी जा रहा है ना। लॉगिन से अगर आप देखें तो फॉरगेट पासवर्ड अगर यूजर ने क्लिक किया तो कहाँ जाएगा, ये फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन पे जाएगा, है ना। दिख रहा है आपको, हाँ यस, नाउ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, है ना। देखिए ये स्क्रीन है, हाँ अब इसके बाद यूजर ने क्लिक किया तो यूजर कहाँ जाएगा, तो यूजर विल मूव टू दिस स्क्रीन। देखिए फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड का आ गया, है ना। हाँ अब लॉगिन से आप साइन अप पे भी जाएंगे अगर आपके पास नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे साइन अप है, साथ में फीडबैक भी है ना। लॉगिन स्क्रीन पे आपको फीडबैक देना है, यहाँ पे देखिए साइन अप पे आ गए आप, साइन अप हो गया, देन यू डायरेक्टली जंप टू होम स्क्रीन, है ना। तो ये पूरा जो कंप्लीट नेविगेशन आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट यू मीन बाय स्टोरी बोर्ड, है ना। हाँ मैं इसको बंद कर रहा हूँ, हमारे प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। हाँ इट विल क्लोज, है ना। सो हम भी अभी ट्राई करेंगे, विल बी क्रिएटिंग 2 or 3 स्क्रीन्स एंड विल बी प्रोवाइडिंग नेविगेशन, टेक्स्ट फील्ड, बटन, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। स्टोरी बोर्ड समझ में आया? एनीवन हैविंग एनी डाउट व्हाट इज स्टोरी बोर्ड? आप क्या करते हैं स्टोरी बोर्ड में? एनीवन? शुड आई मूव अहेड? एवरीवन जाऊं आगे? ओके गुड, ठीक है चलिए। हाँ दिस इज योर स्टोरी बोर्ड। हाँ अब ये स्टोरी बोर्ड में अगर आपको कंट्रोल्स ऐड करने हैं ना, तो यहाँ पे बॉटम, है ना, राइट पे देखिए, देखिए मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ, हाँ यस, हियर यू कैन सी मल्टीपल कंट्रोल्स, राइट। यू हैव बटन, यू हैव टेक्स्ट फील्ड, यू हैव लेबल, है ना। लेट मी ऐड अ टेक्स्ट फील्ड हियर, है ना, इन विच यूजर कैन इनपुट 1 line टेक्स्ट, है ना, जो जनरली आप लॉग इन साइन अप की स्क्रीन में देखते हैं, है ना। यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड ऐड हुआ, है ना। हाँ अब यहाँ पे देखें अगर, है ना, हाँ हियर यू कैन सी, अब ये जो लेफ्ट साइड की स्क्रीन आप देख रहे हैं जहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड दिख रहा है आपको, व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट, ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट, इट इज नोन एज प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जहाँ पे आपको सारी प्रोजेक्ट्स की फाइल दिखेंगी, है ना। थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो जाए इसलिए मैं उसको हाइड कर रहा हूँ। तो ये पोर्शन अगर आपको हाइड करना है तो देखिए यहाँ पे टॉप राइट पे, है ना, टॉप राइट पे ये बटन है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देखिए आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हाइड हो गया है। उसको वापस शो करना है ना, यू विल अगेन क्लिक ऑन दैट, है ना। अभी उसको हाइड रखते हैं ताकि डिजाइनिंग के लिए हमको स्क्रीन पे ज्यादा स्पेस मिले, है ना। आई एम इंटेंशनली हाइडिंग इट, है ना, मैंने हाइड कर दिया। अब आप अगर ये पोर्शन देखें, दिस इज शोइंग योर हायरार्की, है ना। आप, अब मैं आईओएस की टर्मिनोलॉजी पे आऊं तो इसको आप स्क्रीन नहीं बोलते हैं, इसको आप पेज नहीं बोलते हैं। इन iOS सिंगल स्क्रीन इज नोन एज व्यू कंट्रोलर। क्या बोला जाता है उसको? इट इज नोन एज व्यू कंट्रोलर, द कंट्रोलर विच विल बी कंट्रोलिंग योर व्यू, है ना। मैंने बोला था ना मीनिंगफुल नेम है सारे, द कंट्रोलर विच विल बी कंट्रोलिंग योर व्यू इज नोन एज व्यू कंट्रोलर, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज योर व्यू कंट्रोलर, है ना। इन व्यू कंट्रोलर देयर इज अ व्यू। नाउ व्हाट इज व्यू, है ना। देखिए मैं दिखाऊं, एक दो कंपोनेंट और ऐड करूं मैं, आप समझ जाएंगे व्हाट इज व्यू, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड किया, टेक्स्ट फील्ड, देख रहे हैं आप वो कहाँ ऐड हो रहा है ना। आई हैव एडेड 1 बटन, है ना। एक और लेट से मैंने लेबल ऐड कर दिया, है ना। व्हाट आई हैव एडेड मल्टीपल कंपोनेंट्स हियर। वो सारे कंपोनेंट्स कहाँ ऐड हो रहे हैं? व्यू के अंदर ऐड हो रहे हैं, इजंट इट, है ना। व्यू में आप देख पा रहे हैं 2 टेक्स्ट फील्ड है आपके पास, बटन है, लेबल है, तो मतलब आपका व्यू इज व्हाट? इट इज योर टॉप कंटेनर जिसके अंदर सारे आपके कंट्रोल्स होंगे, गेटिंग इट, है ना। फॉर टाइम बीइंग, है ना, ये सारा डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है ना। सर आपने उस प्रोजेक्ट में दिखाया अच्छी अच्छी इमेजेस, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड कलर्स थे आपके, यहाँ पे आपको करना है बहुत ईजी,
है ना, बैकग्राउंड कलर आपको देना है व्यू कंट्रोलर को, है ना, तो आप सिलेक्ट करेंगे व्यू, है ना, व्यू इज योर पेरेंट कंपोनेंट, है ना, विच होल्ड्स ईच एंड एवरी कंपोनेंट। सो आप व्यू को सिलेक्ट करेंगे, है ना, और यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल बटन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, यहाँ पे मैं ये टॉप राइट की बात कर रहा हूँ, है ना, मल्टीपल बटन है आपके पास। आप आ जाइए एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे, है ना, इसको बोला जाता है, जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये थर्ड बटन, इट इज नोन एज एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर, हाँ, विच इंस्पेक्ट्स योर एट्रीब्यूट, है ना, अगेन मीनिंगफुल नेम। जैसे आपको व्यू की एट्रीब्यूट्स देखने हैं, व्यू के एट्रीब्यूट चेंज करने हैं, तो यू विल गो इनटू विच ऑप्शन, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर। ओके, गुड। सो नाउ I am changing my background color to, let's say, blue। हाँ देखिए, है ना, कलर चेंज हो गया है, ब्लू कलर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राइट, है ना, इट्स एज इजी एज दिस, है ना। अब ये टेक्स्ट फील्ड है ना, टेक्स्ट फील्ड में लेट से आपको उसके भी एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं, है ना, उसका भी बैकग्राउंड कलर देना है, लेट से, चलिए, तो उसका भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाएंगे, है ना, लेट से रेड, देखिए दिख रहा है आपको टेक्स्ट फील्ड, है ना, टेक्स्ट फील्ड रेड कलर का हो गया, है ना। अभी उसको सिंपल ही रखते हैं, जनरली टेक्स्ट फील्ड रेड में नहीं होते हैं, है ना, इजंट इट, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हम टेक्स्ट फील्ड पे। प्लेस होल्डर होता है जनरली, जो आपको हिंट बोलते हैं ना, वो आपको हिंट देना है, तो देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट है आपका, है ना, यहाँ पे डाल दीजिए एंटर यूजर नेम, है ना, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक वी हैव टेकन वन टेक्स्ट फील्ड, उसको एक हिंट दे दिया है। आपको फॉन्ट चेंज करने हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, देखिए, है ना, दिख रहे हैं यहाँ पे, फॉन्ट दिख रहा है आपको, कलर दिख रहा है ना, विल बी चेंजिंग इट इन अ बिट, हाँ, देख रहे हैं उसको भी, फॉन्ट कैसे चेंज करना। मैं पहले एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड कर रहा हूँ, है ना, ये यूजर नेम के लिए हो गया। नाउ दिस इज फॉर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, है ना, उसको भी प्लेस होल्डर दे दें, एंटर पासवर्ड, है ना, एंटर यूजर नेम आ गया, एंटर पासवर्ड। नाउ आई विल ऐड वन बटन, है ना, आई एंड विल नेम इट एज लॉगिन, है ना, इसको बटन को अगर आपको नेम चेंज करना है, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, है ना, डबल क्लिक इट और यू कैन गो टू एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर। अब आपको पता है ना, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे जाएंगे, है ना, आप दे देंगे लॉगिन, ठीक है, लॉगिन दे दिया। ब्लू से ब्लू मैच नहीं कर रहा है, आइडियली दिस शुड बी इन डिफरेंट कलर, है ना, वरना यूजर को रीडेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट मी चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर, है ना, तो यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, है ना, लेट से कौन सा लें, चलिए अब रेड ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है ना। सर ये छोटा है, बड़ा करना है, ओके, यू विल बी एबल टू डू इट, है ना, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, देखिए आपका बटन बड़ा हो रहा है। सर बटन बड़ा हो रहा है लेकिन बटन का टेक्स्ट नहीं बड़ा हो रहा है, अगर आप नोटिस कर पाए तो, है ना, इजंट इट, ठीक है। चलिए, तो बटन का टेक्स्ट बड़ा करना है, ओके, लेट्स डू दैट, है ना। यहाँ पे फॉन्ट दिख रहे हैं आपको, सिंपली अगर आप ये फॉन्ट, ये बटन पे क्लिक करेंगे ना, देखिए ये यहाँ पे दो, इसको बोलते हैं स्टेपर, है ना, प्लस माइनस का बटन है, अगर माइनस करेंगे डिक्रीमेंट होगा, प्लस करेंगे इंक्रीमेंट होगा। देखिए ये बटन चेंज हुआ, कलर चेंज करना है ना, अगेन यू विल बी एबल टू डू इट इजीली, टेक्स्ट कलर लेट्स से व्हाइट, है ना। तो वी हैव क्रिएटेड टू टेक्स्ट फील्ड एंड अ बटन विथ अ लॉगिन टेक्स्ट, है ना, इजी। चलिए, अब आपको मल्टीपल फॉन्ट स्टाइल भी अवेलेबल है ना, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप अगर इसको थोड़ा देखें, है ना, मैनिपुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा वी हैव मल्टीपल फॉन्ट्स हियर, है ना। अभी के लिए इसको इतना रखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर नेक्स्ट टास्क इज, एक स्क्रीन हमने डिजाइन कर दिया है। नाउ व्हेन आई प्रेस लॉगिन, यूजर शुड बी रीडायरेक्टेड टू अनदर स्क्रीन, ऐसा कुछ मुझे करना है ना। जैसे ही मैंने लॉगिन प्रेस किया, यूजर शुड बी रिडायरेक्टेड टू अनदर स्क्रीन, है ना। हाँ, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास तो अभी एक ही व्यू कंट्रोलर है, तो व्हाट नाउ विल नीड इज, विल नीड अनदर व्यू कंट्रोलर। हमको क्या चाहिए होगा, एक और व्यू कंट्रोलर चाहिए होगा, जो व्यू कंट्रोलर, है ना, आपको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। देखिए यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, है ना, जो फर्स्ट आपको दिख रहा है दैट इज व्यू कंट्रोलर, है ना। जैसे मैंने क्लिक किया है, आप देख पा रहे हैं उसका नेम आ रहा है ना। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप न्यू स्क्रीन हियर, ठीक है। देखिए व्यू कंट्रोलर आ गया है आपका, सिंपल। इसका भी कलर आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अब यहाँ पे आपको कितनी स्क्रीन दिख रही है,
दिस इज योर फर्स्ट स्क्रीन एंड दिस इज योर सेकेंड स्क्रीन, है ना, मल्टीपल दिख रही है ना आपको स्क्रीन? हाँ गुड, ठीक है। चलिए अब ये जैसे यहाँ पे हमने ब्लू कलर दिया, इसको और कोई कलर देना है ना, तो अगेन वेर यू विल गो इनटू एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर, है ना, बैकग्राउंड कलर लेट्स से हमने दे दिया ऑरेंज। चलिए, है ना, दिख रहा है आपको, इजीली कलर चेंज हो गया। हाँ, अब जब लॉगिन प्रेस करता है यूजर तो क्या करना है आपको, ये स्क्रीन पे जाना है। अभी कुछ कंडीशन नहीं चेक करवा रहे हैं कि यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड 123 है तो ही जाना चाहिए, फॉर टाइम बीइंग, है ना, उसको भूल जाइए। सिंपल बटन की क्लिक मैं करूं, सेकंड व्यू पे जाना चाहिए, वो हमको करना है, ठीक है ना। देखिएगा, है ना, इतना इजी नेविगेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, कहीं भी किसी भी आपको डेवलपमेंट सिनारियो में नहीं मिलेगा जो आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए व्हाट आई एम डूइंग इज, है ना, ब्लिंक ऑफ सेकंड में हो जाएगा। देखिए लॉग इन, है ना, व्हाट आई एम डूइंग इज, देखिए मैंने लॉगिन से एक एरो खींचा और मैं ये स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, है ना। अगेन अगेन आई एम डूइंग इट, देखिए जिसका शायद मिस हो गया हो, है ना, सिंपल लॉगिन, है ना। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, पुश, मॉडल, कस्टम, है ना। अभी जाने दीजिए, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन मॉडल राइट नाउ। दोनों में फर्क है ना, अभी आपको फर्क पता चल जाएगा। चलिए सिंपल, हाँ देखिए कनेक्शन हो गया, है ना। जो हमने अभी जो दूसरी एप्लीकेशन देखी थी उसमें बहुत सारे कनेक्शन आप देख रहे थे, यहाँ पे देखिए कनेक्शन अटैच हो गया है ना। दिस इज नोन एज, इसको आप कनेक्शन नहीं बोलते, दिस इज नोन एज सेगवे। इसको iOS की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेगवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगवे? स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, है ना, यही हो रहा है सेगवे का। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें, है ना, तो ये उसका मीनिंग है, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो यहाँ पे हो रहा है, when user will click on login button, है ना, it will be redirected to second view controller smoothly, है ना, स्मूथ ट्रांजिशन होगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेगवे, उन्होंने जो नेम दिया है कनेक्शन को, ठीक है। तो एक हमारा iOS एप्लीकेशन फर्स्ट हमने क्रिएट कर लिया है ना, सिंपल हमने कुछ उसमें कंट्रोल्स ऐड किए हैं और सिंपल नेविगेशन है, ठीक है। अब इसको रन करना है, तो जो शायद एंड्रॉयड सीखे हुए हैं या एंड्रॉयड इन्वायरमेंट से आते हैं, है ना, इन एंड्रॉयड यू विल नीड टू क्रिएट इम्यूलेटर, है ना, उसके लिए शायद अलग पैकेजेस इंस्टॉल करने रहते हैं, है ना, देन यू विल बी एबल टू डू इट। बट इन आईफोन द बेस्ट थिंग, है ना, सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां आपके पास इतने सारे आईफोन्स होंगे, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम आईफोन 4, 5, 6, 6 प्लस, 6s, 6s प्लस, है ना। बोल सकते हैं आपके मेरे पास तो सारे आईफोन है, कहाँ, एक्स कोड में, है ना, नॉट फिजिकली। सो हाँ, अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम सिलेक्टिंग आईफोन, कौन से आईफोन में आपको रन करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेट्स से आईफोन 5s, है ना। आई विल बी रनिंग माई एप्लीकेशन, इट विल टेक अ मिनट, है ना, क्योंकि फर्स्ट बार ये एप्लीकेशन आप लॉन्च कर रहे हैं तो इम्यूलेटर स्टार्ट होगा, है ना। इम्यूलेटर जैसे ही स्टार्ट होगा, है ना, ये जो डिवाइस आएगा ना स्क्रीन पे, अभी आपको डिवाइस देखेगा, दैट डिवाइस इज नोन एज सिम्युलेटर, बोलते हैं काफी लोग उसको इम्यूलेटर बोलते हैं। एंड्रॉइड में यू कॉल इट एज इम्यूलेटर एंड इन iOS यू कॉल इट एज सिम्युलेटर। देखिए बिल्ड सक्सेड का मैसेज आ गया, मतलब कोई एरर नहीं है ये प्रोजेक्ट में। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा है अभी, है ना, विद इन 10-15 सेकेंड्स आईफोन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको। हाँ यस, है ना, देखिए यहाँ पे आईफोन आ गया है ना। हाँ, स्विच ऑफ मोड में है बाय डिफॉल्ट, है ना, स्विच ऑन हो रहा है। सो जैसे कोई भी डिवाइस अगर आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें तो यूजुअली इट टेक्स टाइम, है ना। यहाँ पे भी वो इट विल टेक अ मिनट टू लॉन्च द एप्लीकेशन। है ना, ये जब तक एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, लेट मी डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट सिनेरियो रिगार्डिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको, हाँ यस, है ना, आपको कुछ दिख रहा है, नेटिव वर्सेस हाइब्रिड, है ना, नेटिव एप्स। हाँ, अब जब आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा अगर टेक्निकल डिटेल में जाए, ज़्यादा नहीं जा रहे हैं हम, सिंपल खाली ये टर्मिनोलॉजी, जहाँ भी आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सुनेंगे तो तुरंत आप ये टर्म ज़्यादा आपको सुनाई देगी, नेटिव, हाइब्रिड। एनीवन, अभी हमने जो ऐप बनाया वो नेटिव है कि हाइब्रिड है?
जिसको पता है थोड़ा बहुत कि ये टर्मिनोलॉजी क्या होता है? एनीवन ऑफ यू? यस सुफियान, अनिल, यस गुड दीपम, है ना, मानित, यस इट्स अ नेटिव ऐप बिकॉज इट इज डेवलप्ड यूजिंग iOS. अगर आप iOS की ऐप, है ना, अगर आप iOS की ऐप एक्सकोड से डिजाइन करते हैं, दैट इज नेटिव ऐप. अगर आप एंड्रॉयड की ऐप, है ना, अगर आप एंड्रॉयड की ऐप नेटिव से डिजाइन करते हैं, that is Android Studio, that is your native app. But if you are developing your app using any hybrid technology, जो आपने सुना होगा AngularJS, right, PhoneGap, है ना, so many platforms are there. One is React Native, दूसरा है Flutter, है ना. ये जो सारी टेक्नोलॉजीज है ना, वो सारी टेक्नोलॉजीज को हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बोला जाता है. व्हाई इज इट सो, है ना, ऐसा क्यों है? द मेन रीजन इज हाइब्रिड एप्लीकेशंस जो आप बनाते हैं उसमें आप कोड एक बार करेंगे और वो चलेगा सारे प्लेटफॉर्म के लिए. वो iOS के लिए भी चलेगा, एंड्रॉयड के लिए भी चलेगा, विंडोज मोबाइल जो शायद अब नहीं है लेकिन पहले थे उनके लिए भी चलेगा, है ना. बट आप नेटिव में बना रहे हैं तो नेटिव में आपको ऐप iOS के लिए चाहिए तो अलग से कोड करिए. इफ यू वांट इट फॉर एंड्रॉयड यू विल नीड टू कोड इट सेपरेटली. गेटिंग माई पॉइंट? चलिए एक आध मेरे को बताइए, व्हाट्सएप कौन सा है, नेटिव है कि हाइब्रिड है? दोनों का बताइए, iOS एंड्रॉयड. व्हाट्सएप इज नेटिव और हाइब्रिड? ऑल ऑफ यू आर सेइंग हाइब्रिड बट नो, द आंसर इज नेटिव. अगर आप व्हाट्सएप का यूजर इंटरफेस देखें ना तो आपको पता चलेगा एंड्रॉयड और iOS दोनों का इंटरफेस अलग है और दोनों की ऐप सेपरेटली डिजाइन की गई हैं, है ना. व्हाट्सएप एंड्रॉयड के लिए डिफरेंट डेवलपर्स ने बनाया, iOS के लिए डिफरेंट डेवलपर्स ने बनाया, है ना. सो इट इज नोन एज नेटिव ऐप, है ना, वो नेटिव ऐप है. अगर आपको हाइब्रिड ऐप का एग्जांपल देखना है तो मल्टीपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, है ना. एक है आपका जियो चैट, दूसरा है HDFC बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन, है ना. ये दोनों अगर आप इंस्टॉल कर पाए, देख पाए तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि नॉर्मल नेटिव एप्लीकेशन में और हाइब्रिड एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है. आपको शायद ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर हाइब्रिड में एक ही बार कोड लिखें, सब में चलेगा, तो व्हाई डू वी नीड दिस नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट? जो अभी आप सिखा रहे हैं उसका तो नीड ही नहीं है. ऐसा क्वेश्चन हुआ किसी को कि सर हम हाइब्रिड से ही नहीं करें, फ्लटर से करें तो सब में चल जाएगा? एंगुलर JS से चलिए मैं ऐप बना रहा हूं, है ना, एंगुलर से बनाया, आयोनिक से उसको मैंने डिप्लॉय किया, है ना, तो सर वो तो सब में चल जाएगा. तो व्हाई डू वी नीड नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट? गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय क्वेश्चन एवरीवन? हाइब्रिड में आप एक बार लिखेंगे सबके लिए वो कोड चलेगा, नेटिव में आपको जितने प्लेटफॉर्म्स उतनी बार मल्टीपल कोड करना. तो व्हाट इज द आइडियल वे? हाइब्रिड पे ही जाना चाहिए ना, तो क्यों नेटिव सीखना? बेस्ट परफॉर्मेंस इज इन नेटिव, यस परफेक्ट आंसर बाय मोहित. आप देखेंगे हाइब्रिड ऐप जैसे मैंने बोला ना, जियो चैट, HDFC बैंक तो चलिए अगर आपके पास अकाउंट होगा तो ही आप यूज कर पाएंगे, है ना. मोर रिलायबल एंड इंटरेक्टिव विथ हार्डवेयर, यस परफेक्ट, है ना. आप जियो चैट एक बार इंस्टॉल करिएगा, है ना. जैसे वेबिनार फिनिश हो जाता है जियो चैट आप इंस्टॉल करके उसको व्हाट्सएप के साथ कंपेयर करिएगा, इजी टू एक्सेस. यस जयमिन, आप ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको नेटिव और हाइब्रिड ऐप का परफेक्ट डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना. तो बोथ द सिनेरियोज आर पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल. आपकी नीड है वहां पे आप नेटिव पे कर सकते हैं, जहां आपकी नीड है वहां हाइब्रिड पे कर सकते हैं, है ना. तो दोनों केस आपके पास पॉसिबल हैं. फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एडमिशन इन MSc IT, है ना, उनके लिए है ना, उनके लिए ये शायद गोल्डन चांस है ना. वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, इजंट इट. मैंने एक टर्म यूज किया दैट वाज मैजिक, है ना. ये मैजिक यूजर्स के लिए है, वैसे ही ये मैजिक डेवलपर कम्युनिटी के लिए है ना. एक एग्जांपल मेरे को अगर दिखाना हो, वेट अ मिनट, है ना, लेट्स से, है ना, देखिए मैं गूगल पे लिख रहा हूँ, है ना. आप सब जानते हैं अभी इन विच इकोनॉमिकल क्राइसिस होल वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, है ना. जॉब के क्राइसिस हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, है ना. आप सब देख रहे हैं, बट हर फील्ड में आपको ये दिख रहा है. बट है ना, ये सिंपल मैं दिखा रहा हूँ, मोबाइल ऐप जॉब ओपनिंग्स इन अहमदाबाद. आप खुद भी गूगल करिएगा, है ना. यहाँ देखिए मैंने गूगल किया,
हाँ, जस्ट सी दी सिनारियो, है ना, मैं कर रहा हूँ ओपन, सारी जॉब्स ओपन करके देख रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, है ना, इफ यू ऑब्जर्व इट, है ना, ये देखिए 12 डेज अगो हाइब्रिड ऐप का डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें मोबाइल ऐप डेवलपर की रिक्वायरमेंट है 3 days अगो, है ना, दे आर पोस्टिंग इन, है ना, अभी जैसे कि लॉकडाउन अनलॉक के सिनारियोस चल रहे हैं, स्टिल दे हैव ओपनिंग फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, जहाँ दूसरे फील्ड में, है ना, अब दिख रहा है कि जॉब छूट रही है, लोगों को सैलरी आधी मिल रही है, और वहां पे इतनी सारी जॉब्स हैं। ये देखिए 9 days अगो सीनियर एंड्रॉइड डेवलपर ओवर 1 month अगो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर 23 days अगो, है ना। अब सारी ओपनिंग्स देख पा रहे हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर ओवर 1 month, है ना, जो लॉकडाउन में। ये देखिए 19 hours अगो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पार्ट टाइम जॉब, है ना, वो भी आपको करना है तो वेब एंड मोबाइल ऐप डिजाइनर, फ्लटर डेवलपर जो हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, है ना, 16 hours अगो, है ना। ये सिर्फ मैं अहमदाबाद का सिनेरियो दिखा रहा हूँ। हाँ, काफी लोग हैं जो अहमदाबाद बाहर के भी हैं, आप अपनी सिटी में देखिएगा। देखिए यहाँ पे iOS डेवलपर ओवर 1 month अगो, मतलब इन्होंने तो लॉकडाउन में इनको रिक्वायरमेंट इतनी थी कि उन्होंने पोस्ट किया है। सो मेरा कहना है कि जैसे यूजर के लिए इट्स अ वो जैसे जीनी लैम्प लेके आता है, वैसे ही हमारे अगर फ्यूचर सिक्योरिटी की आप बात करें तो द बेस्ट फिल अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा शायद आप दूसरे को पूछें तो शायद दूसरे स्टेटमेंट देंगे, बट द मोबाइल एप्लीकेशन इज द फील्ड यू शुड टारगेट फॉर, है ना। और इसलिए मैंने बोला जिसने भी MSc IT में एडमिशन ले लिया है ना, प्रोविजनल एडमिशन ऑफर हो गया है जिनको भी, दे हैव द बेस्ट चांस, है ना, क्योंकि दे विल बी लर्निंग all three technologies. They will be learning iOS, they will be learning Android and they will be learning AngularJS, है ना। सारी तीनों टेक्नोलॉजी वो सीखेंगे, है ना, ताकि वो करंट मार्केट में सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर पाए। जैसे मैं एंड्रॉयड iOS दोनों आता है, बहुत एडवांटेज, है ना। वैसे यहाँ से जितने भी पास आउट्स हैं, है ना, वो लोगों को एंड्रॉयड iOS दोनों पे कमांड रहता है ना। यू विल बी सरप्राइज टू नो, शायद किसी और यूनिवर्सिटी में या और कॉलेजेस में शायद आपको ये देखने ना मिले, वी हैव अकाउंट ऑफ आर इंस्टीट्यूट, है ना। देखिए यहाँ पे प्ले स्टोर का अकाउंट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस एप्स आर डेवलप्ड बाय आर स्टूडेंट्स ओनली, है ना। ये देखिए जो MSc IT का डिपार्टमेंट का ऐप है, ये देखिए स्टूडेंट ने ही डिजाइन किया हुआ है। आप बोलेंगे नहीं सर दिख तो नहीं रहा ये स्टूडेंट ने डिजाइन किया हुआ है। यस, मैं यहाँ पे आपको उसके स्टूडेंट के नेम भी दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि यस ये आप भी बनाया है। यस, ये देखिए ऐप डेवलपर्स दिख रहे हैं, है ना। ये शायद आई गेस 2017 या 18 बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद से ये ऐप डिजाइन किया है, नॉट ओनली सिंगल ऐप। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप डाउनलोड्स देखें, है ना, देखिए यहाँ पे, है ना, जब आप स्टूडेंट हैं, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर आपका चल रहा है एंड यू हैव योर ओन ऐप इन द स्टोर विच हैव 1000+ डाउनलोड्स, सोचिए जॉब की आपको वरी रहेगी, है ना। कोई भी कंपनी आता है, आ जाओ सीधे ही काम करने लगो, है ना, यू डोंट नीड इवन ट्रेनिंग। बहुत सारी ऐप्स हमने डेवलप की हैं। ये देखिए एक रिसेंट ऐप है विच इज डेवलप फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी, है ना। गुजरात यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश लर्निंग के लिए ये ऐप ये डिपार्टमेंट से डिजाइन है। ये देखिए इसके भी अगर आप डाउनलोड देखें, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 29th Feb, है ना। मैं बोलूंगा 4 months शायद हुए हैं, बट सी द डाउनलोड्स, है ना, 1000+ डाउनलोड्स हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट में अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, यू शुड ग्रैब इट विथ बोथ दी हैंड्स, है ना। ये देखिए एक सिंपल ऐप QR कोड स्कैनर जनरेटर, आप बोलेंगे ऐसे तो बहुत ऐप है, लेकिन वो स्टूडेंट ने बोला कि नहीं सर हमको ये ऐप बनाना है, वी से यस गो अहेड। देखिए यहाँ पे आपको उनके ऐप डेवलपर्स के नेम भी दिख रहे हैं, है ना। इसके भी डाउनलोड्स देखिए, विल बी सरप्राइज टू नो इतने सारे ऐप, इतने सारे QR स्कैनर बारकोड स्कैनर जनरेटर हैं, स्टिल वी हैव 1000+ डाउनलोड्स इन दिस कैटेगरी। देखिए ऐप लॉन्च हुआ था बिफोर 2 years, है ना। सिर्फ एंड्रॉइड नहीं, आप iOS स्टोर में भी देखें, है ना, तो वी हैव आवर ओन iOS अकाउंट, है ना, जो स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। ही इज वर्किंग करंटली, जो लास्ट ईयर बैच का स्टूडेंट था, ही इज करंटली अंकिल, आई एम अनिल वेट, आई एम कमिंग ऑन टू इट। हाँ, आई एम कमिंग ऑन टू इट योर क्वेश्चन, है ना। गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिम कि दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, वेब और मोबाइल। आई एम कमिंग ऑन टू इट। हाँ, देखिए ये iOS स्टोर का एप्लीकेशन है ना, विच वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर, है ना। ये भी स्टूडेंट ने ही बनाया हुआ है
है ना, जो लास्ट ईयर हमारा पास आउट स्टूडेंट था, ही इज वर्किंग करंटली इन वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज ऑफ अहमदाबाद, है ना, जो उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं कंपनी से, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी डेवलप दिस ऐप, है ना। देखें डिजाइन, आपको लुक एंड फील भी आपको लगेगा नहीं कि दिस इज डेवलप बाय स्टूडेंट, है ना, बट यस, है ना, देखिए, है ना, जिनके पास भी आईफोन है ऐप इंस्टॉल करके देख सकते हैं, है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, है ना, जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप मोबाइल कंप्यूटिंग एक्सप्लोर कर पाएंगे, मोबाइल कंप्यूटिंग सीख पाएंगे यूजिंग बोथ ऑल थ्री टेक्नोलॉजीज, वेब, सॉरी, नेटिव, हाइब्रिड, नेटिव में एंड्रॉइड आईओएस एंड इन हाइब्रिड फ्लटर. ओके, गुड. How many percentage placement will be done in MSCIT? Yes, Harsh, I'm coming on to it. Yes, first Anil, है ना, yes Anil. हाँ, अब देखिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का ही वेबिनार है इन स्पेसिफिक इन iOS, एंड आई एम फैन ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना, बिकॉज आई एम माई सेल्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ मैं, इसलिए मेरे को अगर आप पर्सनली पूछें तो ऐसा है कि अब आप जो फील्ड वाले को पूछेंगे वो उसका ही आंसर देगा, बट मैं ऐसे न्यूट्रल आंसर दूं. मोबाइल एप्लीकेशन इज अ बॉडी, मान के चलिए मोबाइल एप्लीकेशन इज व्हाट, इट्स अ बॉडी, एंड वेब, है ना, वेब एनी वेब टेक्नोलॉजी इज अ सोल. सोल के बगैर बॉडी नहीं चलेगा और बॉडी के बगैर सोल नहीं चलेगा. क्यों ऐसा है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लीजिए सिंपल जोमेटो का. जोमेटो पे आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट्स दिख रही हैं. ये रेस्टोरेंट्स कहां से आती हैं? सर्वर से आती हैं, राइट. सर्वर में ऐड किसने की? सर्वर में ऐड करना, सर्वर से वो फैच करके लाना, ये पार्ट है वेब एप्लीकेशन डेवलपर का. सो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसको साथ में क्या चाहिए? हैंड टू हैंड वेब एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए ही चाहिए. उसके बगैर मोबाइल एप्लीकेशन बन नहीं सकती है ना. तो मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करनी है, यू विल नीड स्ट्रॉन्ग बैकएंड, है ना. इट कैन बी इन एनी टेक्नोलॉजी, है ना. इट कैन बी इन PHP, इट कैन बी इन जावा, और इट कैन बी, हाँ देखिए, इसलिए वी हैव वेब प्रोग्रामिंग ट्रैक एज वेल, है ना. जैसे कि जो भी MSCIT कर रहे हैं उनको पता होगा कि फॉर फर्स्ट ईयर यू विल बी स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर, है ना. आपको एक ट्रैक चूज करना है. मोबाइल कंप्यूटिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू विल गो फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, एल्स यू कैन गो फॉर वेब प्रोग्रामिंग, क्योंकि वेब प्रोग्रामिंग के बगैर मोबाइल एप्लीकेशन बन ही नहीं सकती हैं, है ना. यहाँ पे देखिए वेब टेक्नोलॉजी आपको मल्टीपल दिख रही हैं, विच वी ऑफर, रेल्स, PHP, लारावेल, मजेंटो, है ना. ये सारे टूल्स हैं जिससे मोबाइल का बैकएंड डिजाइन होता है ना. जो डेटा लाना है, डेटा स्टोर करना है, बीच में शायद आप लोगों को कंसेप्ट पता हो तो वेब सर्विस API का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, जो आपको डेटा सर्वर से मोबाइल एप्लीकेशन में लाके देता है ना. तो वो अगर आपको करना है तो यू विल नीड स्ट्रॉन्ग बैकएंड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपर, है ना. तो इसलिए अब वो आपका चॉइस है ना. यहाँ व्हाट वी डू, है ना, हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सिखाएंगे, वेब भी आप स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 सेमेस्टर में सीखते हैं, फिर आपका चॉइस है ना, कि आपको कौन सा लैंग्वेज, मतलब कौन सा फील्ड आपको ज्यादा सूट कर रहा है ना. वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट डिमांड की अगर, है ना, ही वाज अनिल, यस, स्कोप दोनों में है, क्योंकि दोनों के बगैर काम नहीं चलेगा, है ना. अगर मोबाइल एप्लीकेशन आप बनाए, मोबाइल एप्लीकेशन से सिर्फ काम चल जाता तो वेब एप्लीकेशन वाले फ्री बैठे रहते, बट दैट इज नॉट द केस. दोनों हैंड टू हैंड चलेंगे तब भी एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन बन पाएगा, अदरवाइज नॉट, है ना. तो इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं. एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, है ना, आई गेस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, है ना, बट कि कोई भी एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट आता है ना अगर नाउअडेज अभी कंपनी में, तो इट कम्स इन अ पैकेज, है ना. क्लाइंट क्या बोलता है जनरली, आपको पता है कि इंडियन मार्केट पूरा बेस है जो US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, वहीं के ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं. they come up with a package कि yes we want to develop a whole solution which includes mobile apps, website, admin site, design, web services, everything, है ना. हमको सारा एक साथ चाहिए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन अकेले उसके काम की नहीं है, डेटा डालने के लिए वेबसाइट तो चाहिए होगा. yes I'll share the updated syllabus of MSCIT on your email ID. okay यश, है ना, यश मेहता, हम मेरे पास ईमेल आईडी है, आई विल शेयर यू.
हाँ हेलो यस। सर, अभी जो एप्पल की नई चिप्स आने वाली है इसके लिए कुछ iOS में कुछ फर्क पड़ने वाला है? कौन सी? सॉरी सॉरी जयमीन, विच थिंग अभी यू जो आर आस्किंग? अभी एप्पल खुद हाँ की अपनी चिप्स लाने वाला है मैकबुक के लिए, हाँ, तो उसके लिए कुछ कोडिंग में डिफरेंस आने वाला है? डेफिनेटली कोडिंग में डिफरेंस आएगा। देखिए जैसे कि अगर लास्ट एक डेढ़ पार्ट सोनी, यस, दोज हु वांट सिलेबस ऑफ एमएससीआईटी कैन, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए चैट में, है ना, आई विल बी शेयरिंग दी सिलेबस ऑफ एमएससीआईटी आफ्टर द सेशन, है ना। सो जयमीन, एवरी ईयर एप्पल इज कमिंग अप विथ न्यू न्यू फीचर्स। जैसे कि पहले बात करें तो iOS में कस्टम कीबोर्ड ही नहीं था। जैसे एंड्रॉयड में आपके पास स्विफ्ट नाम का कीबोर्ड है ना। यस। हाँ यस। हाँ, तो वैसा तो आपके पास कीबोर्ड ही नहीं था iOS में, आपको नेटिव ही कीबोर्ड यूज करना था। लेकिन वो लोग ने कस्टम कीबोर्ड लॉन्च किया तो डेवलपर को वो सीखना है, ठीक है, कि वो कस्टम कीबोर्ड कैसे बनाना। क्लासेस इनबिल्ट हैं, आपको यूज करके आप कीबोर्ड बना सकते हैं। वैसे ही होम किट, फिर मेटल किट, फिर जो आप AR VR करंट ट्रेंडिंग सुन रहे हैं उसकी किट, वो सारा एक्सकोड आपको खुद देता है ना। आपको जैसे टच आईडी, पहले टच आईडी नहीं था, फिंगरप्रिंट सेंसर आईफोन्स में, बट उन्होंने टच आईडी दिया तो डेवलपर के लिए उन्होंने क्लासेस भी दे दिए कि आप ये करिए। पूरा अच्छे से गाइडलाइन रहता है। अगर आपको गाइडलाइन वो देखना है ना, तो यहाँ पे आप देखें एप्पल डॉक्स लिखिए, सिर्फ क्या लिखिए, एप्पल एप्पल डॉक्स। डॉक। हाँ, एप्पल डॉक्स गूगल पे लिखिए, है ना। फर्स्ट लिंक जो आता है यहाँ पे देखिए, एप्पल का डॉक्यूमेंटेशन है सारा, है ना, एप्पल डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, सैंपल कोड्स मिलेंगे, है ना। जैसे कि आपको टच आईडी यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, है ना, वो सारे आप फीचर्स यहाँ से आप इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे, है ना। तो कोडिंग के लिए भी आपके लिए इजी रहेगा, है ना। एप्पल डेवलपर, है ना, डॉक्यूमेंटेशन जो ओके। आप पूछ रहे हैं ना, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ मैक ओएस, है ना, ये सारी चीजें देखिए आपको यहाँ से मिल जाएंगी, है ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन इजीली आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है ना, आई विल शेयर माय ईमेल आईडी, है ना, एट द एंड ऑफ सेशन, है ओके, ना, तो आप थैंक यू। कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देख, वी आर डिस्कसिंग मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल के साथ साथ जरूरी है वेब प्रोग्रामिंग एंड द करंट ट्रेंडिंग, है ना, डेटा एनालिटिक्स। दिस इज नॉट द सेपरेट फील्ड। डेटा एनालिटिक्स इसमें होगा, जोमेटो में होगा, मोबाइल एप्लीकेशन में, वेबसाइट में होगा, डेटा एनालिटिक्स आप अप्लाई करेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स अगर आपको अप्लाई करना है, इट्स अ कंसेप्ट, है ना। शायद आप जिन्होंने भी लास्ट वेबिनार अटेंड किया, है ना, तो उनको पता चला कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। सिंपल मैं एग्जांपल दूं, जैसे जोमेटो को ऐसा ऑफर देना है कि जो एरिया में ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो एरिया के यूजर्स को 20% डिस्काउंट दिया जाए, है ना। तो ये कैसे करेंगे? दे नीड टू हैव डेटा, दे नीड टू एनालाइज इट, है ना, कि कौन सा ऐसा एरिया है अहमदाबाद में जहां 20%, सॉरी, ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं, है ना, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द यूजर्स बाय गिविंग सम ऑफर्स, अट्रैक्टिव ऑफर्स, है ना। तो ये डेटा एनालिटिक्स के टूल्स आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जो शायद लास्ट मैडम ने भी डिस्कस किए लास्ट वेबिनार में, तो ये टूल्स अप्लाई करके आप एक स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे। वो स्टैटिस्टिक्स को आप मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन में आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। सो इट दिस वर्क्स ऑल टुगेदर, है ना। सो वी हैव वन ट्रैक नोन एज डेटा एनालिटिक्स, देन द करंट ट्रेंडिंग थिंग, है ना, ई कॉमर्स, है ना। हर चीज आपको ई कॉमर्स पे मिल रही है, दिख रही है। दैट्स वाई वी हैव ई कॉमर्स ट्रैक एज वेल। ई कॉमर्स इज अ, जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें ई कॉमर्स इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। थोड़ा मोबाइल आपको मिलेगा, थोड़ा वेब मिलेगा। यू विल बी लर्निंग एंड्रॉयड, है ना, जिससे आप ई कॉमर्स ऐप डेवलप कर पाए, एंड देन यू विल बी लर्निंग मजेंटो, यू विल बी लर्निंग लारावेल, है ना, कि जिससे ई कॉमर्स साइट आप 10 दिन में बना सकते हैं, है ना। 10 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं लगेगा, है ना, अगर आपको मजेंटो या लारावेल आता है तो ई कॉमर्स साइट डिजाइन करने में, है ना। तो दिस इज इट। एंड लास्ट, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक स्टडी है जिनका कहना है कि रिसर्चर्स सेज दैट, उन्होंने रिसर्च किया है कि बाय द एंड ऑफ 2025 और 2030 आपको जितने भी आपके आसपास में डिवाइसेस दिख रहे हैं ना, हर डिवाइस में एंड्रॉयड होगा, है ना। वेदर यू टेक इट योर कार, बाइक, योर ग्लासेस, योर वॉच, मे बी योर क्लोथ्स, मे बी योर शूज, है ना, योर फ्रिज, टीवी, है ना, हर चीज में क्या होगा, एंड्रॉयड होगा,
है ना, यू विल बी ऑपरेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर एंड्रॉयड डिवाइस। चाबी गुम गई, चाबी यार मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है, एंड्रॉयड डिवाइस आपको वो बता कर देगा कि आपकी की कहाँ है ना। सो ये आपको डेज अभी शायद दिख रहे हैं, पहले सिर्फ फोन में ही एंड्रॉयड था, अब तो हाँ आ रहा हूँ जयमिंग, कमिंग टू दैट, है ना कि हाँ क्या बोल रहा था मैं, यस पहले तो सिर्फ मोबाइल फोन में ही एंड्रॉयड था, है ना, देन आपको वॉच में देखने मिला एंड ग्लास में देखने मिल रहा है ना, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, यू कैन कंट्रोल स्मार्ट होम के कंसेप्ट आप देख रहे हैं जो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा कि यस वो रिसर्च शायद सही है। iOS है ना साथ में ही जा रहा है ना, साथ में ही जा रहा है। देखें पहले सिर्फ फोन में था, वो लोग वॉच में लेके आए, गेटिंग माई पॉइंट, है ना, टीवी में लेके आए, है ना, सो वो पीछे नहीं रहेंगे, है ना, दे विल बी, है ना, वो साथ में चलते जाएंगे, चलते ही जाएंगे। बट iOS व्हाट, एंड्रॉइड देखिए ओपन सोर्स, है ना, लावा वीवो, विच वन इज बेटर टू लर्न, आई विल सजेस्ट टू लर्न बोथ द टेक्नोलॉजीज, है ना, आप एंड्रॉइड भी सीखिए iOS भी सीखिए। तो सर जॉब कौन सा करेंगे, जॉब दोनों का करिए, है ना, विच वॉज द केस विथ मी, है ना, कि या आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस GLS MCA का मैं स्टूडेंट हूँ, आई वॉज प्लेस्ड फ्रॉम हियर, मैं iOS में प्लेस हुआ। हाँ एंड्रॉयड का भी डॉक्यूमेंट में लिंक दिखा देता हूँ, है ना, तो यहीं से मैं प्लेस हुआ, आई वॉज प्लेस्ड इन iOS। सो स्टार्टिंग में 1 डेढ़ 2 महीने आई लर्न iOS, देन द CEO ऑफ कंपनी आस्क्ड मी टू, हाँ कमिंग ऑन टू इट, हाँ हर्ष आ रहा हूँ, आपने 2 क्वेश्चन शायद पूछे हैं, पहले आपने वो प्लेसमेंट का भी सिनारियो पूछा है एंड MCA एंड MSc IT, ओके आई एम कमिंग ऑन टू इट। सो वेयर वाज आई, हाँ तो उन्होंने बोला कि आप एंड्रॉयड भी सीखिए, आई स्टार्टेड विथ एंड्रॉयड एज वेल। एक टाइम आ गया कि कंपनी में एंड्रॉयड डेवलपर नहीं था, मैं 4 घंटे iOS पे काम करता था, 4 घंटे एंड्रॉयड पे काम करता था, है ना, सो दिस वाज द केस विथ मी। सो यू कैन डू दैट, है ना, बहुत आपको ऐसे कम कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिनको दोनों आता है ना। सर वो iOS, हाँ अरे पार्थ, यस यस सॉरी सॉरी, हाँ iOS ऐप तो ये सारे डिस्कशन में वही रह गया, हाँ iOS ऐप आपका रन हो गया, देखिए यहाँ पे, है ना। सो आई सजेस्ट कि आप iOS कृष्णा, एंड्रॉयड iOS दोनों आपको आना चाहिए और दोनों सीखिए, है ना, तो दोनों के आपको प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे। चलिए ये लॉगिन स्क्रीन है, आ गया है ना, मैं चलिए क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ट्रांजिशन हो रहा है, यस, है ना, सक्सेसफुली आपका जो स्क्रीन है वो रन हो गया है और ब्लू के बाद आपको ऑरेंज दिख रहा है। क्या फ्लॉ है इसमें, तो बिगेस्ट फ्लॉ, है ना, ये कंप्लीट ऐप नहीं है, डेफिनेटली कंप्लीट नहीं है, बहुत बहुत बड़ा बग या इशू या एरर आप बोल सकते हैं जो ये स्क्रीन में है। एनीवन फास्ट, हाँ परफेक्ट परफेक्ट जयदीप, यस, है ना, अगर आप देखें इसमें बैक बटन ही नहीं है, यूजर बैक कैसे जाएगा। एंड्रॉयड में अगर आपने ऐसा बनाया होता तो इट वुड हैव गॉन परफेक्ट, क्योंकि एंड्रॉयड में तो नीचे 3 बटन रहते हैं ना आपके पास, बैक करेंगे तो बैक जाएगा, आईफोन में तो बटन ही एक है, तो ये एक बटन से आप अगर वो एक बटन को प्रेस करते हैं, देखिए मैं जो बीच वाला बटन है ना आईफोन का वो प्रेस कर रहे हैं, ये सिमुलेटर में कैसे प्रेस होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। हार्डवेयर मेनू पे जाइए एंड प्रेस ऑन होम बटन, है ना, मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया, देखिए आपका ये तो होम स्क्रीन खुल गया। अब अगर वापस आप ऐप ओपन करते हैं अगेन, है ना, क्या है सिनारियो, बैक तो बटन ही नहीं है, तो बैक यूजर कैसे जाएगा, है ना, तो इसके लिए और मैकेनिज्म्स हैं, है ना, जो मैंने जो सेगवे दिखाया जब मैं दे रहा था तो 3 ऑप्शन थे, पुश था, मॉडल था, है ना, एंड थर्ड वाज कस्टम। वो अगर आप पुश देंगे ना यहाँ पे तो वो बैक बटन आएगा, है ना, तो थोड़ा एडवांस है, अगर उसके लिए भी कुछ कोडिंग नहीं करना है आपको, डिजाइन से ही, ये स्टोरी बोर्ड से ही वो चीज़ आपकी मैनेज हो जाएगी कि आपका बैक बटन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, और आप इजीली नेविगेट कर पाएंगे। अगर देखना हो तो मैं क्विकली एक वो उसको ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, वी डोंट हैव इनफ टाइम, है ना। हाँ सो यू आर आस्किंग फॉर प्लेसमेंट, यस तक्ष परफेक्ट, है ना, हाँ नाउ आई एम रनिंग इट अगेन, है ना, आपको देखिए ऊपर ये स्क्रीन में कुछ दिख रहा है ना, आई एम रन करेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ सो हर्ष, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, है ना, वेट अ मिनट रन हो जाए,
है ना। हाँ देखिए हर्ष, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, आई वुड से लास्ट 2 ईयर का जो सिनारियो है, कंपनीज आती हैं, है ना, बट हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, है ना। वी हैव कमिंग 100 more than 100 कंपनीज आर कमिंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स इनफैक्ट, है ना। जो लास्ट 2 ईयर्स का मेरे को याद है परफेक्ट, मैं बता रहा हूँ। कंपनीज के कॉल आते हैं, डू यू हैव एनी फ्रेशर्स लेफ्ट, डू यू हैव स्टूडेंट्स, हमको बोलना पड़ता है नहीं, ऑलरेडी ऑल आर प्लेस्ड। बट सम ऑफ देम आर कि दे वांट टू ट्रैवल टू यूएस, कनाडा, है ना, या फिर आईटी में जॉब नहीं करना होता है, तो वो लोग प्लेसमेंट अपने आप से नहीं लेते हैं, है ना। बट यहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिला, ऐसे आपको बहुत गिने चुने, शायद एक भी स्टूडेंट, है ना, लास्ट बैच में भी अगर आपको कॉन्टेक्ट हैं तो पूछ सकते हैं, मिलेंगे नहीं, है ना, क्योंकि कंपनीज के कॉल आते रहते हैं कि डू यू हैव स्टूडेंट्स, डू यू हैव स्टूडेंट्स, उनको मना करना पड़ता है कि नहीं, है ना। हाँ अब देखिए, जैसे मैंने लॉगिन पे, यस यस नाउ यू हैव बैक बटन, है ना, देखिए ये बैक बटन आ गया है, हमने सिर्फ एक माइनर चेंज किया, है ना, उससे बैक बटन आ गया है ना। ये देखिए, ये भी आपको पता होगा स्वाइप वाला फीचर, देखिए मैं बैक नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए स्मूथ हो रहा है ना। व्हाट आई एम डूइंग इज, है ना, मैं इसको सिंपली स्वाइप कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये जो आपको आईफोन यूजर्स हैं उनको पता होगा कि ये फीचर्स क्या हैं, है ना। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, है ना। एंड MCA and MSc IT, Harsh, I'll suggest you wait a minute, huh? Wait. हाँ, एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस हर्ष, व्हाट यू कैन डू इज, हाँ जो आपने इंक्वायरी की है ना, इंक्वायरी में आपके पास है ना विनीता मैडम या रचना मैडम, विनीता नायर, रचना चौधरी, इन दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर है ना, वो आपको ये डिटेल्स दे विल बी एबल टू शेयर विथ यू, है ना। तो उससे आप, उनसे आप कांटेक्ट करके, ओनली फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन वेब एप्स, व्हाट आर द करियर स्कोप्स, यस यस गुड, है ना अनिल, अगेन अ गुड क्वेश्चन। हाँ तो हर्ष, है ना, आप विनीता मैडम, रचना मैडम, आई होप आप GLS यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे, गिव देयर नंबर प्लीज, ओके ओके, आई एम शेयरिंग इट, है ना, एट द एंड ऑफ सेशन शेयर कर रहा हूँ मैं, है ना अनिल। हाँ अनिल, Just sorry to interrupt, Vishal sir. हाँ यस 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 विनीता मैडम, गो एड। Yes, hello Harsh, I'm Vinita Nair. As per your two questions, you had asked that what is the placement scenario of our institute and which one is better, MCA or MSCIT? Now, as Vishal sir have showed that we are growing in various regions in App Store, Android, iOS app stores. So we are growing in placement also. And last year recorded placement scenario was of 90%. We recorded 90% of the placement scenario for our last year students. And your second question was about which one is better, MC or MSCIT. See, we have both the courses in our institute. Both are 2-year program, but if you will compare the course curriculum, which is available on our website, you will see a change in MSCIT is that we give track specialization. As Sir has also presented in his slide, that we are offering 5 tracks: IoT, web programming, data analytics, e-commerce. Fine. So these are some of the track specialization which is available in MSCIT program. And there you have a generalized learning of the subjects. You are having various subjects which you will be learning there. And another difference is of the fees also. The fee structure has also been available on our website. There is a change in the fee structure also in both the programs. So this is the change in both MCA and MSCIT. I think, is it fine? Or you want to ask anything else regarding placement or the curriculum?
Harsh, are you there? Okay, fine. Thank you, Vishal sir. You can continue. Okay. Okay. Madam, can you share your number, please? Here. Yes, sure. Huh. Okay, so Parth was no, Anil was asking. Yes, Anil, I would say if you are a IT person who knows bit of technology and you are good at designing, so you have good combination of recognizing various colors, or you have good command over Photoshop, Illustrator, various designing tool, then I'll suggest you to move into the field of front-end development in web application or in mobile application, anything you can opt for. But that is a good option. That is a good option because we don't have good IT engineers who can design well. So IT companies hire the designers from various design institutes. Okay, so if you have command over it, you can, I guess you should go for it. Anil, am I making sense? Okay, good. Wait a minute before finishing this. हाँ, एंड्रॉयड का, यस एंड्रॉयड का कमल, हाँ, है ना, एंड्रॉयड के लिए भी आपके पास है ना ऑफिशियल गूगल के ही आप एंड्रॉयड डॉक्स आप लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, देखिए गूगल एंड्रॉयड डॉक्स, है ना, विल बी एबल टू फाइंड सो मैनी डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ यू गो ऑन टू यूट्यूब, देखिए डॉक्यूमेंटेशन है फॉर दिस इज फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स, developer.android.com, दिस इज द साइट, है ना, यहाँ पे दिख रहा है डेवलपर गाइड्स, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, विल बी स्टार्टिंग इट सून, वेरी सून, है ना. Wait a minute, everyone. ओके, हाँ, दिख रहा है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आपको टॉपिक्स हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनिमेशन, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन सेंसर्स, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन कैमरा, वांट टू वर्क ऑन ऑडियो वीडियो, है ना, तो यहाँ से आपको सारी हेल्प मिल जाती है. ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनीवन, एनी क्वेश्चंस regarding the iOS mobile any mobile application development, any question, anyone? No questions? Okay, so as I said, we have the course for BCom student as well, है ना, जो हमने देखा कि IT has so many jobs in this scenario as well, है ना, तो BCom students who want to pursue their career in computer applications or computer science, they can opt the course known as post graduation diploma in computer applications. This is 1 year course. If you want to inquire about this course, है ना, you have the number in chat, the number of Vinita madam, है ना, you can ask him why you choose MCA for your career, why not MSc IT. CMET नहीं दिया, then can I apply for MCA? Yes, I would. Yes. Wait a minute. Let me answer your question. Yes. My when I completed my BCA, my target was to pursue MSc IT from DIUCT. Yes, Dhirubhai Ambani Institute of Computer Technology. But somehow I couldn't get admission there, so I came here, GLS MCA. I preferred, and at that time MSc IT was not there in GLS. And MSc IT for post graduation was run by only one institute, that was DIUCT. But I pursued MCA. I completed my MCA, and I'm currently working in MSc IT department of GLS University. Yes, for MCA, CMET is required. You will need to give it. Yes. Okay, anyone? है ना? So that was the reason of my, है ना, कि मैंने MSc IT तब GLS में था ही नहीं. Anyone else? Any questions? Okay, everyone. Thanks a lot for attending the session. And I am sharing my email ID. If you have any question, you can knowledge and guiding us. Thank you, CS Gamer. I don't know what's your name. Okay, I'm sharing my email ID. Okay, Maharshi, good.
I'm sharing my email ID. If you have any doubts, you can mail me or queries or questions, okay, regarding mobile application development. Okay, thank you everyone for attending the session. Everyone, bye. I'm ending the session. Sir, please share upgraded syllabus. Yes. I'll surely mail you the brochure of MSc in which you will be able to find the syllabus and other contents. Okay, good. Thank you everyone.